वापरी नहीं आ रही। तो ये पढ़ाना है सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म, केमिकल मैसेंजर एंड रिसेप्टर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफी क्वेश्चन अजीब अजीब से आते हैं, तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इज एन आर्किटाइप फॉर, ये क्वेश्चन है CSIR का, क्या बोलोगे इसमें? इसमें है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। बाकी सारे वोल्टेज गेटेड है, कैल्शियम गेटेड है, लेकिन एसिटाइलकोलिन एक्टिंग एज ए लाइगेंड। तो ये है इन सिग्नलिंग इवेंट बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड एक्टिवेट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, दैट इवेंचुअली एक्टिवेट फास्फोलाइपेज सी बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आवाज आ रही परफेक्टली, साउंड आ रही क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक सिग्नलिंग इवेंट है एंड इफ एक्स्ट्रासेलुलर लाइगेंड एक्टिवेट्स जी प्रोटीन coupled receptor, then it's going to activate phospholipase C beta. So which one of the following statement truly reflects the function of phospholipase C beta? क्या जवाब दोगे? ये हम वापस आएंगे जब हम ये पढ़ लेंगे, ठीक है ना, ऐसे गेस करना। इस पे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं काफी बार, एंड ये डीबीटी का क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन, इसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, CSIR डीबीटी गेट सब में पूछा जाता है, ठीक है। तो एंड डिप्थीरिया टॉक्सिन इज क्लीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ a suitable eukaryotic cell into two fragments। तो इसका ऑप्शन तो दिया हुआ है, डिप्थीरिया टॉक्सिन का काफी पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। चलो, तो ये क्या पूछा हुआ है इसमें पढ़ लेते हैं, ताकि पढ़ते समय we should focus on exact property की what they are basically asking। Okay, so diphtheria toxin is cleaved on the surface of susceptible eukaryotic cell into two fragments, one which enter the cytosol, bind to peptidyl transferase and inhibit protein synthesis, react with ATP to phosphorylate EIF2 and prevent the insertion of MET-TR into the P site, and react with NAD plus to add ADP ribose to EIF2 and prevent movement of peptidyl tRNA from A to P site in the ribosome। So अभी तो इसका ऑप्शन ये मार्क कर लेते हैं, क्योंकि एंड देन वी विल डिस्कस वेरी शॉर्टली हाउ द डिप्थीरिया टॉक्सिन, विब्रियो कॉलरा, है ना, GPCR एंड देन सिस्टिक फाइब्रोसिस सिग्नलिंग इज गोइंग टू वर्क, एंड देन समटाइम यू आर गेटिंग द मैचिंग टाइप क्वेश्चन, एंड ऑल्सो अबाउट द सेकेंड मैसेंजर। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट this question answers actual chapter about the signaling. What is the signal? Signal may be a chemicals, right?
So chemical, biochemical, exactly you can say, not exactly chemical. This is biochemical, and I think we have heard about the hormones and paracrine factors. Okay, so what is the paracrine factors? Any idea? What is the hormone? How the hormone is going to act? No idea. हार्मोन अगर बेसिकली देखो, दे आर रिलीज्ड at one part, है ना, but they are acting far away from the source. And while if you are talking about the paracrine factors, they are the local mediators, means they are released locally and they are acting locally. Okay, so what is the signal transduction? What are different elements involved in the cell signaling is the part of signal transduction. It may include ligand, primary messenger, and then receptor. We will discuss how many receptors are there, how many type of ligands are there. Based on the ligand classification, we can classify the type of signal transduction. And then basically CSIR is going to ask about the signal transduction. Signal transduction means how the amplification of signal is going to done by the second messenger. Okay, so all this is going to be asked, and how the changes occurs in the gene expression. Very shortly we are going to discuss. So if you see the signaling molecule, this is the why the blood vessel hormone is traveling far away from the source, and here you can see. Now they are diffusing via the membranes, and then they are reaching. Good evening, to the sir. Good evening, beta. How are you? सर ठीक है. ओके सर आप कैसे हो? आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है. सीजनल थोड़ा सा लंबा ही हो गया. जी सर. गर्म पानी पी रहा हूँ और खाना तो बहुत ही हल्का, खिचड़ी. Sometime in the dry, this shows that na, in the drastic condition you have to be very normal. जब भी आपके ऊपर कठिन परिस्थिति आए, बहुत ही नॉर्मल हो जाओ. Forget everything. Like if your body is weak, you have to serve your body by the very simple foods, so that there should not be any reaction. So you have to pass the hard time. Signal transduction बहुत अच्छा लेक्चर आपको मिलने वाला है आज, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि अभी तक मैंने नहीं देखा किसी के कोई ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपको. तो लेट अस सी. बेसिकली अगर सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करोगे तो वी कैन डिवाइड इट इनटू द 5 पार्ट: सिग्नल रिसेप्शन, इंटीग्रेशन, एम्पलीफिकेशन एंड टारगेट एंड टर्मिनेशन. सारा इसी पे है, एंड मोस्टली एवरी पार्ट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द CSIR. सिग्नल रिसेप्शन कैसे होता है, इंटीग्रेशन कैसे होगा, एम्पलीफिकेशन कैसे होगा, हाउ दे आर रीचिंग टू द टारगेट, हाउ दे आर गोइंग टू बी टर्मिनेटेड. सो ये पूरा समरी डायग्राम है. बहुत डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे. अभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में you can receive the signaling molecule and there is a receptor. And CSIR लास्ट ईयर पूछा था कि कौन से ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो विदाउट रिसेप्टर वर्क करते हैं. दे डायरेक्टली एंटर इनसाइड द सेल्स एंड एक्ट ओवर द DNA. उनका एग्जाम्पल पूछा था. हाँ ये सर, हाइड्रोफोबिक. हाँ, स्टेरॉइड. स्टेरॉइड, यस. तो स्टेरॉइड पे लिपिड बेस्ड जो होते हैं या स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि अगर इम्यूनोलॉजी का पूरा पार्ट देखो, इन्फ्लेमेशन देखो, साइटोकाइन का डिफ्यूजन देखो, है ना, पेन रिसेप्टर देखो, ऑल दीज आर वर्किंग ओवर दिस मैकेनिज्म. तो हम दो ही तरह का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं. एक तो जो डिफ्यूज कर सकते हैं, दैट इज स्टेरॉइड, और एक डिफ्यूज जो नहीं कर सकते हैं, दैट इज हाइड्रोफिलिक. ठीक है, अभी क्लियर हुआ? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक.
बाकी ये ट्रांजैक्शन का पार्ट है, अभी हम नहीं बात करेंगे, और रिस्पांस की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम इसी पार्ट पे फोकस करेंगे, हाइड्रोफिलिक वर्सेस हाइड्रोफोबिक। तो ये हाइड्रोफोबिक है, लिपिड सॉल्युबल है, तो मेम्ब्रेन ऑलरेडी हाइड्रो। सर जैसे ये एग्जाम्पल जैसे, हेलो, सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। हाँ सर, जैसे ये आवाज है कट लिपिड आवाज कट रही बेटी। मतलब रिसेप्टर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा। हाँ, डिफ्यूज कर जाएगा सीधे, हाँ सीधे चला जाता है न्यूक्लियस। वो टाइम वेस्ट नहीं करता डायरेक्टली ना, इसको कहते हैं टाइम वेस्टेज। यहाँ पे टाइम वेस्टेज बहुत हो रहा है, रिसेप्शन बाइंड करना, फिर ये यहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होना, देन सेकेंड मैसेंजर बनना, है ना, सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल को बनना, एंड देन दे आर गोइंग टू एम्पलीफाई द सिग्नल, और फिर रिस्पॉन्स का आना। दैट इज वेरी टफ। तो नॉन पोलर की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द नॉन पोलर सिग्नलिंग और एस्ट्रोजन सिग्नलिंग और स्टेरॉयड हार्मोन सिग्नलिंग which can cross the bilipid membrane and hence make entry inside the cell. Chemical signal enter the cell and directly alter the gene expression pattern. Lipid signaling contribute to various activity like inflammation. नोट कर लो, अक्षिका है नहीं आज में, अच्छा ये नोट कर लो बेटा। पहले तो दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, नॉन पोलर एंड, एक तो गया नॉन पोलर एंड अदर वन इज पोलर। तो पोलर की बाद में बात करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, स्टेरॉयड हार्मोन्स, व्हाट इज द फीचर, दे आर एबल टू, लिख रहे हो ना, क्रॉस द बाइलिपिड मेम्ब्रेन, ये लिख लो। They can cross the bilipid membrane and hence make entry inside the cells. Okay, and they can directly enter the, alter the gene expression pattern. तो जो भी लिपिड सिग्नलिंग है and they are involved in the various activity, एग्जाम्पल लिख लो, ये पूछा जाता है ना, कौन सा नहीं इन्वॉल्व है, देन यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज, या मैचिंग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इन्वॉल्व जो है वो है इन्फ्लेमेशन, कैंसर, मेटाबॉलिक, कार्डियोवास्कुलर एंड डिजेनरेटिव डिजीज। ठीक, लिख रहे हो बेटा, ये लिख लिया अक्षिका? सर यस सर, ये है सिग्नल, ठीक है, सर सिग्नल लिपिड पोलर सिग्नलिंग में ही मतलब ये, हाँ लिपिड सिग्नलिंग का पार्ट कह लो। स्पेसिफिक फंक्शन दिया कि इन्फ्लेमेशन, कैंसर, हाँ हाँ हाँ, इसमें सारे रोल पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन का अलग रोल है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है उनका अलग है, बट कुछ लिपिड सिग्नलिंग भी हैं जिनका रोल इसमें है, इन्फ्लेमेशन, कैंसर, डिजेनरेटिव डिजीज, कार्डियोवास्कुलर, है ना। तो बहुत डेप्थ में पूछा जा रहा है सीएसआर में क्वेश्चन। सो ये चीज ही का मतलब इन्फ्लेमेशन, कैंसर, हाँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। सर क्योंकि हाइड्रोफिलिक, ये चले आगे। सो फॉर एग्जाम्पल लिपिड, हाँ दे रहा हूँ उसको एग्जाम्पल, जैसे सेरामाइड, सेरामाइड इज ए लिपिड, है ना। तो सेरामाइड, अभी बेटा आवाज कट रही है आपकी ना, आप सेरामाइड मीडिएट मेनी स्ट्रेस
कर रहे थे सेरामाइड इज फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो नोट कर लो दिस इज ए लिपिड रिस्पॉन्स ऑफ लिपिड सिग्नल दिस सेरामाइड इज इटसेल्फ ए लिपिड and they are going to mediate many cell stress response for example apoptosis senescence है ना और दूसरा देखो इन्फ्लेमेशन की अगर बात करें तो इन द इन्फ्लेमेशन मोस्टली icosanoids such as prostaglandin leukotrienes all these are involved in the inflammatory responses. Okay, so recently extracellular action on GPCR have been deciphered and intracellular binding partner of icosanoid have also been identified. So many selective drug targeting strategy is going to be based on the inflammation. And also in the cancer research, this study of GPCR is very, very important. So last few years you will see CSIR is going to ask so many questions from GPCR. Okay. So various signals are also there. For example, growth factors, cytokines, chemokines. So all these are also part of the nutrients. Sometimes they can modulate the activity of lipid modifying enzyme. अभी हम देख रहे थे CSIR ने क्वेश्चन पूछा ही था about the PI3K, phosphoinositide 3 kinase, sphingosine kinase, phospholipase C, है ना? So all these are kind of lipid signaling, example of lipid signaling in which these lipid molecules are going to be modified. For example, activation of phospholipase A2, prostaglandin S2 synthase, lipoxygenase, है ना? All these are required for icosanoid रिलीज जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग में. तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा आ जाएगा एंड यू विल लर्न सम बेसिक एग्जांपल. जैसे एक कैथेप्सिन डी है दैट हैव बीन प्रपोज्ड एज द मेन टारगेट फॉर सेरामाइड फॉर्म्ड इन ऑर्गेनेल कॉल्ड लाइसोसोम मेकिंग लाइसोसोमल एसिडिक, और एक एंजाइम इसके साथ जुड़ा है दैट इज द SMAs एंजाइम. क्या नाम है? SMAs एंजाइम. कैथेप्सिन डी की हम चर्चा कर रहे थे. कैथेप्सिन डी इज इन्वॉल्व इन द मेनी सेरामाइड pathway and especially they are responsible for making the lysosomal acidic. और SMAs एंजाइम की अगर बात करें तो दे आर की प्लेयर इन द माइटोकॉन्ड्रियल बेस्ड एपोप्टोसिस मैकेनिज्म. ठीक है. सेरामाइड वाज आल्सो नोन टू एक्टिवेट PKC zeta implicating it to inhibition of AKT signaling, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. AKT signaling ये एपोप्टोसिस का एक पार्ट है. एंड वेरियस ड्रग्स फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, है ना, Daunorubicin etopsin enhances de novo synthesis of ceramide in studies done on mammalian cells. ठीक है. तो ये सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे सो दैट चलो. तो ये सारे सेरामाइड पाथवे के पार्ट हैं. तो स्टेरॉयड हार्मोन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. इफ यू वांट टू सी एग्जांपल विद द डिटेल मैकेनिज्म, हमने बताया था पोलर एंड नॉन पोलर. तो नॉन पोलर का एग्जांपल है लिपिड सिग्नलिंग और स्टेरॉयड बेस्ड सिग्नलिंग. तो इफ यू सी द लिपिड सिग्नलिंग और स्टेरॉयड based signaling, so we can classify them into the two, anabolic steroid and glucocorticosteroid. थर्ड भी होता है, अभी इसमें हमने नहीं लिया, इंक्लूड किया है इजी करने के लिए. बेसिकली ये 3 टाइप्स का होता है. एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड लाइक टेस्टोस्टेरोन that build muscles and masculinize hair, deep voice, है ना.
related to the sex hormones. Glucocorticoid related to the metabolism like cortisone, and इसको prednisone भी कहते हैं, that are anti-inflammatory, immune suppressant, used in swelling, rashes, asthma and bronchitis. तो अगर आप देखोगे how they are working these steroid hormones, basically crossing the membrane, है ना, membrane को cross करते हैं, and then there are steroid receptor inside the cytoplasm, and these complex actually they are going to form, and only these complexes are allowed to enter the nucleus, otherwise there will be great problem. This complex bind directly to the chromatin, activate mRNA transcription. ठीक है ना, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन के एक्शन का एग्जांपल था. And sometime in this question about the relay molecule is going to be asked how many times they are going to be amplified. The receptor, you can see there is a peptide hormone, and then the number of times they can amplify, that 10 power 1 in the first stage, 10 power 2, and then 10 power 3. And this much of amplified molecule is going to cross as a second messenger inside the nucleus, and they are going to bind the DNA, and then they can transform the transcription factor, and then you can see the cellular response. So this is the common mechanism, common pathway. And if you'll see, we can divide the signaling molecules into three parts. One is the lipid soluble, that is non-polar steroid, and these two are water soluble, amino acid derivative based and peptide based. तो पेप्टाइड क्या डिफरेंस है, तीनों एक जगह मैंने दे दिया ताकि आपका कोर्स 5 मिनट में खत्म हो जाए, है ना. तो सिंथेसिस as a pro hormones, and steroid synthesized in a series of reaction from cholesterol, and amino acids are synthesized from tyrosine mostly. ठीक है. Steroid storage stored in vesicle, released immediately, constant secretion, stored before release, storage mechanism varies. बेटा म्यूट कर लो ना, बच्चे गाना गाते हैं इसी टाइम पे. Solubility most are polar, बता दिया था कि these are polar and water soluble. Receptor, bind receptor on cell membrane and transduce signal via the use of second messenger system, bind to intracellular receptor to change gene expression directly. Adrenaline act on membrane receptor, while thyroid hormones act directly on nuclear receptor. Effects often fast onset transient changes in protein activity through gene expression changes can occur. Steroid में you can see alteration in gene expression directly, है ना. Example cortisol, aldosterone, estrogen, progesterone, testosterone, जबकि अमाइनो एसिड में मोस्टली आपके थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, ये सारे हार्मोन आ जाते हैं. सर, हाँ जी. सर ये स्टेरॉइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है ना सर? हाँ जी, हाँ जी. तो ये सर मतलब ये एज अ वेसिकल्स में स्टोर करके नहीं होता है, वो डायरेक्टली सिक्रीशन रहता है? सिक्रीशन भी होता है, और ये कैरियर प्रोटीन के बिना तो ट्रैवल ही नहीं करते ना. They have to travel in the blood with the carrier protein, with the help of carrier protein. Otherwise, they will going to be destroyed or going to create some complication. सर जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में वो एलडीएल के साथ अटैच होकर ब्लड में रहता है, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये इनको कैरियर प्रोटीन के साथ ही इसको भेजते हैं. ये ट्रैवल ऐसे नहीं कर सकते कोलेस्ट्रॉल से मॉडिफाई हुए और डायरेक्टली जाके. डायरेक्ट एक्शन कभी भी नहीं होता है. They are traveling with the carrier protein is releasing to the target, है ना. टारगेट में फिर ये अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद फिर वहां भी एक कैरियर प्रोटीन होती है. They are again binding, and then only with the carrier protein they can enter inside the nucleus and they can cross. ये सब सिंथेसाइज करेगा कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन. हाँ, टेस्ट ये सारा इसका एग्जांपल है.
जबकि आप तो इंसुलिन, किस तरह से ग्लूकागॉन, मैकेनिज्म? ठीक है सर। हाँ ये याद रखना, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, गैस्ट्रिन, पैराथायरॉइड, ये सारे हार्मोन जो है पेप्टाइड है। और अमाइनो एसिड में ओके सर। 3 है, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। तो ये पूछा हुआ था कि थायरॉक्सिन किस रूप में काम करता है, हाँ इसी सर, साल में पूछा हुआ T4। क्वेश्चन है। हाँ, ट्राईआइडोथायरोनिन T4। तो इसीलिए मैंने एक जगह पे कर दिया कि 5 मिनट में आपका सिलेबस कवर हो जाए, राइट। यस। बाकी स्टडी का डिटेल तो कोई अंत नहीं है, वो पढ़ते रहेंगे, है ना। तो ये मेन पॉइंट है कि आपको याद होने चाहिए। अगर आप करें वेसिकल में दीज आर स्टोर्ड, ओनली पेप्टाइड हार्मोन्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द वेसिकल, राइट। तो स्टोरेज, स्टेरॉइड का रिलीज इमीडिएटली, कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेशन इसलिए इसको कहते हैं पेप्टाइड का रेगुलेटरी सिक्रेशन। अमाइनो एसिड का अगर देखोगे तो स्टोर्ड बिफोर रिलीज, स्टोरेज मैकेनिज्म वेरीज। तीन ही है ये। तो एड्रेनालिन एक्ट ऑन मेम्ब्रेन रिसेप्टर, व्हाइल थायराइड हार्मोन एक्ट डायरेक्टली ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर रिसेप्टर पे डायरेक्टली कौन एक्ट करता है, तो वह है थायराइड हार्मोन। एड्रेनालिन फंक्शन लाइक पेप्टाइड, थायराइड हार्मोन फंक्शन इज सिमिलर मैनर टू स्टेरॉइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सर ये एड्रेनलिन जो है वो ही इपिनफ्राइन और नॉर इपिनफ्राइन वही है ना सर? हाँ, फाइबर, ठीक है ना। चलें आगे। तो स्टेरॉइड का थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। बिकॉज दे कैन फ्रीली डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे बाइंड टू रिसेप्टर इन ईदर द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट सेल एंड फॉर्म एक्टिव रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। बनता तो है रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, but this is not occurring on the surface rather than in the cytoplasm or nucleus. And this activated complex will move into the nucleus and bind directly to DNA, acting as a transcription factor for gene expression. Example of steroid hormone include those produced by the gonads: estrogen, progesterone, and testosterone. ये सारे एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडायल, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन, रेटिनोइक एसिड, विटामिन D3, ये सारे एक ही मैकेनिज्म, एक ही तरह के मैकेनिज्म पे काम करते हैं, ऑल वर्किंग इन द सेम सिमिलर थॉट ऑफ पैटर्न। सो दे इंक्लूड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करो तो रिलीज फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, एंड गोनाड से जो रिलीज होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन में ये सारे दोनों आ जाते हैं। ऑल दीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। तो दो तरह के होते हैं इसमें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्ट ऑन द किडनी टू रेगुलेट साल्ट एंड वाटर बैलेंस, व्हाइल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कभी कभी आपको मैचिंग में दे सकता है, ठीक है। एक डायसोन इज एन इंसेक्ट हार्मोन दैट प्ले अ की रोल इन डेवलपमेंट बाय ट्रिगरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ लार्वा टू adults. So all the thyroid hormones, vitamin D3, retinoic acid are both structurally and functionally distinct from the steroid. They share a common mechanism of action in their target cells, right? Thyroid hormone is synthesized from tyrosine in the thyroid gland. It plays an important role in development and regulation of metabolism. Vitamin D3 regulates calcium metabolism and bone growth. Retinoic acid and related compounds, retinoids synthesized from vitamin A, play important role in vertebrate development. तो ये इसका भी काफी बार पूछा जा चुका है, रेटिनोइक एसिड का, है ना, जो कि सिंथेसाइज होता है विटामिन ए से। विटामिन D3 कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के रूप में, एंड देन बोन ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज फ्रॉम द टायरोसिन एंड एक्टिंग ओवर द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना, थायराइड हार्मोन, विटामिन D3 एंड रेटिनोइक एसिड, हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट, बिकॉज दे आर एक्टिंग वेरी डिफरेंटली एज द स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये सारा तो चलो हो गया, बट कम टू द डायरेक्ट पॉइंट। स्टेरॉइड हार्मोन
you can see there is no receptor here. They are directly crossing the nucleus, and inside the cytoplasm there is a receptor. They are going to bind the receptor, and this receptor hormone complex is going to directly modulate the rate of ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. सो जैसे अगर हार्मोन की एब्सेंस की बात करें या देन व्हाट कैन हैपन, तो ट्रांसक्रिप्शन विल बी रिप्रेस्ड. एंड इफ यू आर एडिंग द हार्मोन, तो in the presence of hormone, transcription is activated. So such kind of action is going to be started, right? So thyroid hormone receptor acts as a repressor in the absence of hormone, but hormone binding converted to an activator that stimulates transcription of thyroid hormone inducible gene. तो mechanism समझना है, and then molecular level पे याद रखना है. And there is some different kind of signaling molecule that are gases, nitric oxide and carbon monoxide. Recently a few past year में CSIR में काफी questions भी आए हैं. How the nitric oxide is going to act. तो पहला चीज नोट कर लो, nitric oxide is a major paracrine signaling molecule in the nervous, immune and circulatory system. They are not endocrine, they are paracrine. Like the steroid hormone, NO is able to diffuse directly across the plasma membrane of the target cell. The molecular basis of NO action, however, is distinct from that of steroid action. Rather than binding to a receptor that regulates transcription, NO alters the activity of intracellular target enzymes. The first step in this process is the release of बैक करिए सर, स्लाइड बैक करिए. Rather than binding a receptor, they regulate transcription, no alter that. सर वो लास्ट वाला पॉइंट से ये भी डिफ्यूज करता है ना, स्टेरॉयड हार्मोन की तरह. सिमिलरिटी बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली ये डिफ्यूज कर सकता है. ठीक है. एंड अब जैसे अगर ये भी डिफ्यूज करेगा तो इसको भी रिसेप्टर चाहिए, है ना. जी सर. रिसेप्टर चाहिए लेकिन रिसेप्टर होता नहीं है. So what is the molecular basis of NO action that is different from the steroid action? Rather than binding to receptor that regulate transcription, ये directly जाके टारगेट एंजाइम की एक्टिविटी को ही अल्टर कर देते हैं. ठीक है. तो दिस शुड गो, ऐसा लगता है कि कैरियर के साथ जाना चाहिए इनको, लाइक स्टेरॉयड हार्मोन, बट हियर दे आर टोटली डिफरेंट. सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एक्शन है. तो गैसियस वाले जितने भी होंगे वो क्या करते हैं, वो कहीं भी कैरियर को जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली दे कैन चेंज मॉड्यूलेट द टारगेटेड एंजाइम को ही इफेक्ट करते हैं. ठीक है. ओके सर. यस सर. यानी सर गैसियस मॉलिक्यूल्स को कुछ भी जरूरत नहीं है, उससे डायरेक्टली डिफ्यूज होगा, लेकिन स्टेरॉइड को कैरियर मॉलिक्यूल या न्यूक्लियस में कैरियर चाहिए, भले वो सरफेस पे नहीं चाहिए, लेकिन हाइड्रोफिलिक को सरफेस पे चाहिए होगा. उनको ट्रैवल करने के लिए ब्लड में भी चाहिए, दो जगह कैरियर चाहिए. एक जहां से रिलीज हो रहा है, इमीडिएटली दे आर गोइंग टू बाउंडेड बाय द सम कैरियर मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड. हां यस स्टेरॉइड हार्मोन. यस सर. हां फिर वो रिलीज हो जाते हैं टारगेट के मेम्ब्रेन पे, एंड वेयर दे कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड दे कैन कम टू द साइटोप्लाज्म. ऑलरेडी देयर इज ए वेरियस रिसेप्टर बाय व्हिच बाइंडिंग सक्सेसफुल बाइंडिंग, देन ओनली दे कैन क्रॉस द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का केस जैसे एनओ का देख लें, तो एनओ डायरेक्टली किस पे काम करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है, राइट. तो जैसे एसिटाइलकोलिन काम करता है उसी तरह एनओ काम करता है, एंड दे आर आल्सो रिलीज्ड वेरी सिमिलर इन वेरी सिमिलर फैशन लाइक टर्मिनस ऑफ नर्वस सेल. So these neurotransmitters act on endothelial cell to stimulate NO synthesis. NO then diffuses to neighboring smooth muscle cell where it reacts with iron bound to active site of the enzyme guanylyl cyclase. ये इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम कौन सा है जिसको ये इफेक्ट करते हैं. ये है जी साइक्लेज, या याद रखो, या गुआनिलिल साइक्लेज, है ना. हाँ. तो इनको एक्ट करने के लिए कौन सा मेटल चाहिए, आयरन. NO without iron cannot act, and then only they can modify this enzyme guanylyl cyclase, and this increases enzymatic activity resulting in synthesis of second messenger. अब ये second messenger बनेगा, और second messenger बन गया तो they can initiate muscle cell relaxation and blood vessel
dilation. So NO is responsible for signaling the dilation of blood vessel that leads to penile erection. तो ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म है. इसमें ये बता रहे हैं कि how they are different from the steroid. They are not requiring any kind of carrier molecule. They can travel, diffuse. They can travel by diffusion, and directly they are modifying the enzyme in the presence of iron. And because of modifying the enzyme activity, they are releasing a large number of second messenger cyclic GMP. ये भी पूछा हुआ CSR में कि NO की वजह से कौन सा second messenger release होता है. So that is cyclic GMP. Cyclic GMP is going to induce muscle cell relaxation, blood cell vessel dilation. So NO is responsible for signaling the dilation of blood vessel that leads to penile erection. So it is also interesting to note that medical uses of nitroglycerin in treatment of heart disease is based on its conversion to NO, which dilates coronary blood vessel and increases blood flow to heart. तो ये है arginine. पूछा हुआ है किस अमाइनो एसिड से, which amino acid break down to form the nitric oxide. So this is the arginine. Arginine. And carbon monoxide also function in the very similar way as the NO. Synthesis of CO in brain cell like that of NO is stimulated by neurotransmitter. CO can stimulate guanylate cyclase, which may also represent the major physiological target of CO signaling. Neurotransmitters carry signal between neurons or from neurons to other type वो of. कार्बन मोनोऑक्साइड में और NO में कुछ खास डिफरेंस है सर? नहीं कोई खास difference नहीं. तो मैकेनिज्म तो दोनों का सेम है. दोनों का सेम है. गाइनिल साइक्लेज भी. हाँ बिल्कुल सब कुछ सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं, बट उनका फंक्शनल बिहेवियर अलग है. फंक्शनल बिहेवियर ही अलग है, अदरवाइज बाकी सब डिफरेंस. टारगेट सेल का ही बात होता है. टारगेट सेल विल बी डिफरेंट. तो इपिनेफ्राइन CO का क्या है सर? CO भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है ना, खास करके ये एक्ट करता है. तो पिछले वाले स्लाइड में कुछ. हाँ ये है ना, मेजर फिजियोलॉजिकल टारगेट ऑफ CO सिग्नल. कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्नलिंग ये भी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं. जैसे आपने देखा होगा डेथ हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी बंदा है ना एक्सेस CO ले लेता है, तो उसकी ब्रेन डेथ हो जाती है, बिकॉज ब्लॉक हो जाते हैं सारे न्यूरोट्रांसमीटर ना. न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही काम करता है ये. Synthesis of CO in the brain cell like that of NO is stimulated by neurotransmitter. तो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह स्टिमुलेट भी करते हैं, डाउन भी करते हैं, तो दोनों चीजें हो सकती हैं. न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन आते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर कैरी सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन्स और फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर टाइप ऑफ टारगेट सेल. तो बेसिकली एग्जांपल पूछा जाता है कि दिस इज गामा, जैसे इसके बारे में पूछा जाता है गामा अमीनो butyric acid, serotonin, histamine, dopamine, acetylcholine, all these are neurotransmitters. So very simple mechanism is there. They diffuse across the synaptic cleft and bind to receptor on the target cell surface. So some neurotransmitter can also act as hormone. So for example, epinephrine function both as a neurotransmitter and as a hormones produced by the adrenal gland to signal glycogen breakdown in muscle cells. सर एड्रिनल ग्लैंड तो वही किडनी ना, किडनी के ऊपर की मिनरलोकार्टिकॉइड, ठीक है ना. तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर का. चलो अब आते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर का. नहीं अभी इस पे नहीं आ रहे, अभी तो वही चल रहा है. हाँ न्यूक्लियर रिसेप्टर दो तरह के होते हैं जो आप लिपिड का पढ़ रहे हो. दे आर एस्ट्रोजन रिसेप्टर लाइक एंड कीटोस्टेरॉइड रिसेप्टर्स. एंड nucleus of steroid hormones receptor have been identified. That is the G protein, GPCR जिसकी बात कर रहे थे. Second one is the ion channel and third one is the SHBG.
SHBG यानी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। सो ये बता दिया आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सर ये रिसेंट रिसर्च है ना सर, स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर GPCR, वरना जैसे पहले वो RTK था। हाँ ये रिसेंट वाला है। और सर ये आयन चैनल और ये रिसेंट रिसर्च है, GPCR आयन चैनल सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन? पैराक्राइन एक्ट ऑन लोकल, ठीक है, एंड ऑटोक्राइन सिस्टम ऑकर मोस्टली इन द इम्यून सिस्टम, पैराक्राइन अदर देन द इम्यून सिस्टम, ठीक है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, लिपिड वाले हो गए है ना, NO हो गया, गैसियस वाले हो गए, ऑल दीज आर पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो अब थोड़ा आते हैं सिग्नलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे फैसिनेटिंग फैक्ट्स। तो अगर आप देखोगे तो वी कैन क्लासिफाई इनटू द 4 टाइप: डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग, right, and then endocrine, traveling far away from the source via circulatory system and then taking over the target cells. Paracrine local, released by the local and act on the local cell. The autocrine self cells, उसी सेल से प्रोड्यूस होंगे, उसी सेल पे एक्ट करेंगे। तो दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक बार थोड़ा वो पीछे करेंगे, वो स्लाइड का यस सर। ये याद रखना, इस पे काफी क्वेश्चन पूछ चुका है ना। पैराक्राइन के एग्जांपल बाय द डायग्राम, ऑटोक्राइन डायग्रामेटिक पूछ देते हैं कभी कभी, एंड यू आर नॉट श्योर कि कौन सा पैराक्राइन है कौन सा ऑटोक्राइन है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यू शुड नो कि बाय द डिस्टेंस हाउ वी कैन क्लासिफाई द सिग्नलिंग टाइप: एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन। सर हो गया, ठीक है ना। बहुत लंबा है वैसे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ध्यान रखना, जब भी हम डिस्कस करेंगे we should think about the receptor affinity, that is very important, and binding between the ligand and receptor, and what is the KD के बारे में भी फार्मूला पूछ चुका है CSIR में। So these are some question, for example, what is the receptor down regulation and what is the receptor and what is the GPCR, how the receptors look like, all these questions are there. The GPCR का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो GPCR इट्स कॉल्ड एज सर्पेंटाइन, सांप की तरह दिखता है। 7 स्ट्रक्चर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो 5 वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो एन टर्मिनल है, 2 जो है मैसेंजर बाइंडिंग साइट्स हैं। तो ये इसीलिए इसका नाम है GPCR, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन इज ऑलवेज लिंक्ड देयर एंड दैट इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड। So sometime these G protein are called as the heteromeric molecule because they are going to be cleaved. अगर आप देखोगे तो इसमें अल्फा बीटा गामा अटैच्ड होते हैं, एक साथ होते हैं इस रिसेप्टर के। तो इसमें GPCR में क्या हो गया, 2 तरह के चीजें हो गई। रिसेप्टर भी है टू बाइंड द ligands from outside, and inside there is a G protein. G protein is formed of 3 component: alpha, beta and gamma. So as soon as the ligand binding is there, then you can see GTP is release energy, and then alpha portion is going to be separated from the beta and gamma. हमको अल्फा GTP, ये काफी एक्टिव है अल्फा GTP।
अल्फा जीटीपी इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट द रिएक्शन, इसी के ऊपर है। तो अल्फा जीटीपी जी अल्फा 7 hybridized its bound GTP to GTP and become inactive, 7 recombine to form inactive G proteins. What is cyclic MP? ATP is going to be degraded into the cyclic MP. याद रखना, always ATP is going to be degraded into cyclic MP. या cyclic MP indirectly you can say going to form from the degradation of ATP with the help of enzyme. Which enzyme? Adenylyl cyclase. ठीक है, तो ये basic facts हैं. And this is going to act as a second सर वो messenger. बैक करिए एक मिनट, साइक्लिक एएमपी का। तो इसमें आप क्या बता रहे थे? With the help of adenylyl cyclase, है ना, ATP is going to be converted into the cyclic AMP. ओके, हाँ, ठीक है। Cyclic AMP, this is basically a second messenger molecule, and basically they are involved in the cyclic AMP involved in the cholera and pertussis. ठीक है, कॉलरा जो होता है वेब्रियो कॉलरा के एक्शन में भी साइक्लिक एमपी इन्वॉल्व है, परटूसिस के भी एक्शन में काफी सीजर में क्वेश्चन इस पे पूछ चुका है। ठीक है, एंड जी प्रोटीन बिसाइड साइक्लिक एमपी व्हाट अदर सेकंड मैसेंजर डिपेंड अपॉन जी प्रोटीन। ओके, जी प्रोटीन हाउ इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइग्लिसरॉल आर फॉर्म। तो बड़ा सिंपल है, इसमें आप देखो ऑल दीज आर डिग्रेडेशन मैकेनिज्म। So cyclic AMP is the one second messenger that is going to form. Other second messenger that is going to form is inositol triphosphate and DAG. तो ये CSR में पूछा हुआ था कि जो IP3 बनता है ना, वो किससे बनता है, वो किसके डिग्रेडेशन से बनता है? तो दैट इज PIP2. PIP2 डिग्रेड होके and then they are going to form the two molecule. One is the IP3 inositol 1,4,5 triphosphate, another is the diacylglycerol. And this is the example of G protein action. Already I have shown you. और यहाँ पे हमने दिखाया है कि अल्फा GTPase की बात क्या होता है। तो अल्फा GTPase एक्चुअली में बाइंडिंग टू द इनएक्टिव फास्फोलाइपेज C। अब ये फास्फोलाइपेज C ही फास्फोलाइपेज C जो एंजाइम है, दिस इज गोइंग टू डिग्रेड PIP2 into IP3 एंड DAG। और IP3 का क्या रोल है? दे आर इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। DAG एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज C। कुछ बच्चे हमारे इतने महान हैं, वो कहते हैं सर हम ना आपका क्लास नाइट में नहीं अटेंड कर सकते। हमने कहा रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में देख लो तुम्हारे लिए मॉर्निंग में थोड़ी क्लास चलेगी भाई, वीडियो अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग इसीलिए तो है फैसिलिटी, जब मर्जी देखो उसको, क्वेश्चन आंसर करो। मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट देते रहना है ना। मॉक टेस्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत समझ लो कितना सफर करते हुए भी हमने अपलोड किया। सर कल मैं जेनेटिक्स का दूंगी। हाँ, तो मेरा जेनेटिक्स मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए। हाँ ठीक है, वो देखते रहना। तो ये थोड़ा सा समरी लिस्ट मैंने बनाया था कि inositol triphosphate and diacylglycerol have the different target and different functions. तो ये देख सकते हो, रेगुलेटेड फंक्शन, प्लेटलेट एक्टिवेशन, मसल कंट्रैक्शन में टारगेट इज स्मूथ मसल एंड मैसेंजर इज एसिटिलकोलिन। प्लेटलेट एक्टिवेशन ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बिन। इंसुलिन सिक्रेशन पैंक्रियाज, एंडोक्राइन, एसिटिलकोलिन। रेगुलेटेड फंक्शन एमाइलेज सिक्रेशन पैंक्रियाज, एक्सोक्राइन, एसिटिलकोलिन। ठीक है,
and glycogen degradation, liver, antidiuretic hormone, antibody production, B lymphocyte, foreign antigen. How is the calcium concentration in cell regulated? अब ये भी पूछा हुआ काफी कि कैल्शियम, हाउ द कैल्शियम इज गोइंग टू एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर। तो कैल्शियम कहाँ से, IP3 से कंट्रोल होता है, ये भी बताया था आपको, ठीक। IP3 से, Yes, तो sir. IP3 is going to act over the calcium channel that is present in the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum से एक्चुअली में these are controlled, वहां से रिलीज होता है। Calcium pump is very very important part of your signal transduction second messenger molecule, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल बेस्ड जो एपोप्टोसिस होती है उसमें भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा हुआ है कि विच रिसेप्टर इज गोइंग टू बाइंड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम से कौन रिसेप्टर बाइंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसका नाम है राइनोडाइन रिसेप्टर। ये नाम नोट करने वाला है, राइनोडाइन रिसेप्टर। राइनोडाइन रिसेप्टर, हाँ, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, ये चैनल प्रेजेंट है। हाँ, ये जवाब नहीं आएगा ना किसी को, चैनल भी, ये पूछेगा पूछेगा। पंप और कैल्शियम पंप भी, मतलब सर चैनल भी है और पंप भी है हाँ कैल्शियम का। हाँ, कैल्शियम बाहर पंप से है, अंदर की कैल्शियम तरफ, चैनल भी है। हाँ ये सब पंप बाहर से अंदर, फिर अंदर जो है अंदर से बाहर चैनल के थ्रू। कैल्शियम अंदर जाने के लिए ATP लगेगा, ठीक है, बाहर आने के लिए कोई ATP नहीं लगेगा, ठीक है। तो दैट इज हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। How does calcium exert its effect in the cell? तो ये दिखा देते हैं, कैलमोडलिन प्रोटीन होती है एंड बेसिकली कैलमोडलिन हैव ए बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। कैल्शियम कैलमोडलिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज देयर and with the help of calmodulin binding site, these are going to act on the different target cells. Yes, sir. ठीक है। What role does an increase in calcium play in development of animals? तो ये सीधे सीधे एक स्पर्म के फ्यूजन में इन्वॉल्व है कैल्शियम। एक्टिवेटेड स्पर्म बाइंड टू एग सरफेस and there is a cortical granules, okay, and white line envelope around egg plasma membrane, cortical granule releases it. Yes sir. सर मूवमेंट में कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, हाँ, एंड पॉलीस्पर्मी ब्लॉकिंग वगैरह में। हाँ, sperm fuses with the egg, cortical granule content causes creation of fertilizing envelope, ये सारा कैल्शियम का रोल है। cortical granule में बेसिकली कैल्शियम है। What role does calcium play in plant cell function? प्लांट में कैसे काम करता है, प्लांट में भी इनका रोल है। How G protein involved in smooth muscle relaxation, वो अभी हमने आपको बताया है, with the help of GPCR, acetylcholine, inositol phosphate, ICP3, हाँ, calcium released from endoplasmic reticulum, then bind to calmodulin, calmodulin activate anosynthase, आर्जिनिन से सिट्रिलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड करेगा गायनिल साइक्लेज को, हाँ, तो यानी गायनिल साइक्लेज जो है वो खुद भी एक रिसेप्टर एंजाइम है ना वो तो सर। हाँ, वो एक्ट एज अ रिसेप्टर भी है क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड उस पे जाके बाइंड हो रहा है। नहीं, रिसेप्टर नहीं कह सकते, एंजाइम को बाइंड करता है। यही तो डिफरेंस है स्टेरॉइड और गैसियस मॉलिक्यूल वाले, है ना। They don't need receptor, other than they are going to modify the enzyme or modify enzyme करके they are releasing the second messenger cyclic GMP, they activate protein kinase G and there is a muscle relaxation, dilation of blood vessels. सर एक मिनट फिर से दिखाइए।
सर थोड़ा जूम करके थोड़ा सा। हाँ, लो पूरा जूम हो गया। ये लो। अच्छा एंडोथेलियल सेल है, 2 सेल इन्वॉल्व है, एंडोथेलियल सेल और स्मूथ मसल सेल्स। यस सर। जी सर। ठीक है। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो रिसेप्टर की बात आगे अभी तक जंगली मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, है ना। तो स्टार्टिंग विद द प्रोटीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। तो लेट अस स्टार्ट विद द टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, आरटीके रिसेप्टर भी इसको बोलते हैं, एंड दिस इज बेसिकली द इन्वॉल्व इन ईजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। केस में ये आपको आरटीके मिलेगा, है ना। ग्रोथ हार्मोन। हाँ, ग्रोथ हार्मोन। ये देख लें, सिंपल रिसेप्टर है, ligand is going to bind the receptor and then changes the tyrosine kinase function. Okay. The structure of the epidermal growth factor receptor. Tyrosine kinase receptor. What are non-receptor tyrosine kinase? ये देखो tyrosine kinase receptor. इसमें वो याद रखना पड़ता है किसके थ्रू और कहाँ पे कैसे हुआ। रिसेप्टर इज ईजीएफ, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज ईजीएफ, रिसेप्टर इज ईजीएफ, डायमेरिक रिसेप्टर है, देख रहे हो, है ना। यस। डायमेरिक रिसेप्टर जैसे ही ये लाइगेंड बाइंड कर रहा है, इमीडिएटली देयर इज हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी, रस, है ना, जीटीपी रस। अब यहाँ पे देखो, ये सेकेंड है ऑटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन का ऑटोफॉस्फोरिलेशन होता है, देन दो तरीके की मैकेनिज्म हो सकती है। एक तो पीआई वाया पीआईपी2, डॉग इज रिलीज्ड, ISP3 इज रिलीज्ड, देन ISP3 रिसेप्टर चैनल, फिर वही कैल्शियम है ना। और अगर फॉस्फोलाइपेज सी गामा को ले लें तो दे आर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, और PIP2 डाग वाला ये पूरा चलेगा। और दूसरी तरफ फॉस्फोरिलेशन का फायदा क्या है कि दे आर गोइंग टू फॉस्फोलेट अदर डोमेन लाइक SOS GRB2 रिसेप्टर एंड एक्टिवेटेड GRB2 SOS स्टिमुलस RAS पाथवे। तो RAS पाथवे के थ्रू मैप काइनेजेस, फिर APK ट्रांसक्रिप्शन सर ये रिसेप्टर के साथ जो SOS GRB2 और PLC गामा ये रिसेप्टर के साथ लगे हुए हैं। हाँ, हाँ, सिस्टर डोमेन है ना, एसिस्ट डोमेन को बाइंड करना है। मैप काइनेज पाथवे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, व्हाट वैरायटी ऑफ एपिथेलियल मेसेनकाइमल सेल, TGF अल्फा, PDGF, mesenchymal smooth muscle cell, trophoblast, tyrosine kinase, TGF beta fibroblast cell, serine kinase, FGF, mesenchymal fibroblast, tyrosine kinase, IL-2, इंटरल्यूकिन-2 भी ग्रोथ फैक्टर है। हाँ, ये ग्रोथ फैक्टर CSF, साइटोकाइनिन है ना। हाँ, WNT, TGF बीटा, EGF, TGF अल्फा, PDGF, TGF बीटा, ये सारे ग्रोथ फैक्टर है। गला बैठ गया। रिसेप्टर कभी कभी पूछ जाता है व्हाट इज द टाइप, तो WNT7 पास प्रोटीन, CSF1 टायरोसिन काइनेज, IL-2 कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 सब यूनिट, FGF टायरोसिन काइनेज, है ना, EGF टायरोसिन काइनेज जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, TGF अल्फा, PDGF बीटा, सब टायरोसिन काइनेज। केवल एक है TGF बीटा जो कि सेरिन थ्रेनिन काइनेज। तो TGF बीटा के ऊपर CSIR ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंट है ना, टायरोसिन काइनेज नहीं है।
WNT भी 7 पास है, बाकी सब टायरोसिन और काइनेज। हाँ सारे बाकी सारे टायरोसिन काइनेज है, लेकिन TGF बीटा और WNT केवल ये जो, हाँ ये दोनों और डिफरेंट है। इंटरलिकेन 2 जो है कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 सब यूनिट। 3/7 FGF का भी बता दिया आपको, वहीं बता दिया। FGF भी क्या है? टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज का सेम फंक्शन है। टायरोसिन विल बी फॉस्फोराइलेटेड, तो नॉर्मल रिसेप्टर पेयर बिकम एक्टिवेटेड एंड ट्रांसमिट सिग्नल। FGF बाइंड, FGFR फॉर्म डाइमर। डाइमर हमेशा याद रखना, डाइमर। यस सर। कभी कभी म्यूटेंट पूछते हैं कि इफ देयर इज ए म्यूटेंट FGFR देन व्हाट विल हैपन। The mutant receptor can pair with the normal receptor, but the heterodimer cannot transmit the signal. पेयरिंग हो जाएगी दोनों रिसेप्टर की, एक नॉर्मल हो अगर एक म्यूटेंट हो तो दोनों पेयरिंग भी कर लेंगे और लाइगेंड को भी बाइंड कर लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि दे कैन नॉट ट्रांसमिट द सिग्नल। How does TGF beta differ from FGF? वो आपको बताई दिया। TGF beta they are not यस सर। tyrosine kinase। थ्रियोनिन काइनेज और FGF हाँ। जो है टायरोसिन रिसेप्टर है। हाँ, TGF beta का ज्यादातर पूछ सकता है। ये स्मैड पाथवे के थ्रू काम करते हैं, ये याद रखना। बाकी सारे का सेम पाथवे है, बट इनका चूंकि रिसेप्टर ही अलग है तो दे आर गोइंग टू एक्ट वाया SMAD एंड co-SMAD। हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दे आर एक्टिव लोकली। बाकी का आपको बता ही दिया, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड डायरेक्टली दे कैन रेगुलेट, है ना। प्रोटीन एंड पेप्टाइड रेगुलेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन सिस्टम। प्रोटीन्स का, पेप्टाइड रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर एंड ब्लड प्रेशर, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमिक ट्रॉपिक हार्मोन, इपिनेफ्राइन, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन दोनों बनते हैं टायरोसिन से। दे आर गोइंग टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, फैटी एसिड स्टोरेज, हार्ट रेट। Energic hormone, what kind of receptor respond to these hormones? सर पैराक्राइन हार्मोन का जो एग्जांपल था हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। बाउंसर जा रहा है, कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है आज। क्यों बच्चों, बाउंसर जा रहा है आज? नो सर। सर अभी तक तो समझ में आ रहा है। चलो फिर तो ठीक है। यस मेन चीज, हाँ मेन चीज ये है ना कि आपको लिंक करना है सारी चीजें। कठिन कुछ भी नहीं है, सब आसान है। पैराक्राइन का आपको बता दिया लोकल, जैसे हिस्टामिन, तो ये आंसर आपको क्वेश्चन। हाँ, हाउ डज हिस्टामिन एक्ट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। हिस्टामिन एक्ट इज इन पैराक्राइन वे, और हिस्टामिन का क्या रोल है आपको पता ही है। इसी तरह से व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन है बेसिक रोल इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। इसका देख सकते हो, हाउ दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन वाया कैल्शियम। वही है इसका, देखो थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर, प्लेटलेट, है ना। तो ये थ्रोम्बोक्सिन जो है, दिस इज द मेन रिसेप्टर ऑफ प्लेटलेट्स। तो ये रिलीज कहाँ से होता है, दे आर गोइंग टू रिलीज फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड। अब आर्किडोनिक एसिड कहाँ से बनता है, दे आर गोइंग टू फॉर्म बाय द एक्टिवेशन ऑफ फास्फोलाइपेज A2। फास्फोलाइपेज A2 कहाँ बनेगा, जी प्रोटीन से, GPCR। GPCR का अल्फा पोर्शन अलग काम करेगा, PLC बीटा आपको बताया था अलग काम करेगा, ठीक है। PLC बीटा गोइंग टू एक्ट ओवर द PIP2, फिर देन IP3, फिर सीधे सीधे कैल्शियम। IP3 सीधा मतलब कैल्शियम, ठीक है। ये सारा देख रहे हो, IP3, ठीक। यहां से स्टार्ट हो रहा है कोलेजन रिसेप्टर, जी प्रोटीन थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर, जी प्रोटीन थ्रोम्बिन प्रोटीएज,
थ्रोम्बिन रिसेप्टर जी प्रोटीन, ये सारे एक्ट कर रहे हैं एंड देन आर्किटिनोइक एसिड ढेर सारा एक्यूमुलेट हो जा रहा है and then via cyclooxygenase they are going to be converted to thromboxane A2 receptor platelet in the vicinity, platelet activate हो गया। तो ये एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, देख रहे हो सीरीज से, thromboxane A2 रिसेप्टर देन थ्रोम्बिन प्रोटीज। सर ये क्या डेंस ट्यूबुलर सिस्टम क्या है सर? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ पे? सर ये बीच में जो डेंस ट्यूबुलर सिस्टम जो है तो इससे, क्योंकि कैल्शियम जब IP3 बाइंड हो रहा है तो कैल्शियम बाहर निकल रहा है। अरे वो ट्यूबुलर सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन्होंने वैसे लिख दिया है। अच्छा, वो आपको बताया था पहले डायग्राम में कि कैल्शियम जब भी रिलीज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा, उसका दो पाथवे, अंदर जाने के टाइम पे ATP लगेगा, बाहर आते समय कोई भी ATP नहीं लगेगा। इसमें चैनल भी है, इसमें पंप भी है, ठीक है। एपोप्टोसिस में हाउ दे आर गोइंग टू एक्टिवेट, तो ये देख रहे हो ब्लेबिंग, लैडरिंग, सेल फ्रेगमेंटेशन, ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ द एपोप्टोसिस। DNA लेबलिंग, यस, ठीक है ना। इसमें मैकेनिज्म अगर देखना चाहोगे तो ये है सेल सिग्नलिंग, दिस इज कॉल्ड एज द डेथ डोमेन, फास्ट लाइगेंड इज कॉल्ड एज द डेथ डोमेन रिसेप्टर। ये एक्सटेंसिव पाथवे। हाँ, एक्सटेंसिव पाथवे, दो तरह के पाथवे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, इंट्रिंसिक है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू अलग होता है एंड देन वाया लाइगेंड रिसेप्टर अलग पाथवे, दैट इज कॉल्ड द FADD डॉक्टर। तो फास्ट लाइगेंड अगर ये ज्वाइन करता है तो दे आर गोइंग टू फॉर्म द FADD, सेल डेथ सिग्नल बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोकैस्पेजेस 8। प्रोकैस्पेजेस 8 का मैकेनिज्म पूछा है कि कैसे ये काम करता है, तो प्रोकैस्पेजेस 8 देन 3 देन 9, ऐसे याद रखो ना। प्रोकैस्पेस 8 देन 3 फिर कैस्पेस से 3, फिर कैस्पेस 9। सर कैस्पेस 9 तो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है। हाँ वो अलग से है, कैस्पेस 9 का अलग से, 8 के थ्रू 3 आया है। हाँ दोनों पाथवे मिला दिया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, तो ये प्रोकैस्पेस 8 है, फिर कैस्पेस 8, फिर कैस्पेस 3, फिर एपोप्टोसिस, और फिर एपोप्टोसिस, कैस्पेस 9 और कैस्पेस 3 एपोप्टोसिस। हाँ ये इंट्रिंसिक वाला, जब ये अंदर सेल के अंदर इंट्रिंसिक वाला कैस्पेस 9 के थ्रू होता है, याद रखो। इंट्रिंसिक वाला माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो होगा वो हमेशा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, प्रोकैस्पेस 9, इंट्रिंसिक कैस्पेस 3, ठीक है ना। यस सर। डेथ प्रोमोटिंग गुड प्रोटीन BID, BCL2 IP3। 8 जो होगा हमेशा रिसेप्टर वाला होगा, 9 ऑलवेज वाया द माइटोकॉन्ड्रिया, BCL2, P53 BCL2, साइटोक्रोम C रिलीज होगा, साइटोक्रोम C एपॉफ प्रोकैस्पेस 9 और प्रोकैस्पेस 9 बनकर एपोप्टोसोम, इसके बाद कैस्पेस 9 है। हाँ एपोप्टोसोम बनने के बाद ही कैस्पेस 9। कुछ भी पूछ लेते सर, इतना ये चीज, कुछ भी। यस सर। हाँ लेक्चर तभी बनाया जाता है ना, बहुत सोच समझ के लेक्चर बनाया जाता है, क्योंकि देखो ये पूरी ना बुक है, अगर आप सेल सिग्नलिंग में घुसोगे तो आपको 1 महीना लग जाएगा समझने में पूरी चीजों को। यहाँ पे है कि एक लेक्चर में आपको खत्म करना है सारा कुछ कहानी एक लेक्चर में खत्म करो। यहाँ पे ये टारगेट है, प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, लेक्चर कम प्रैक्टिस ज्यादा है। सर यहाँ पर जो DNA डैमेज हुआ P53, इसके बाद जो ये डेथ प्रोमोटिंग प्रोटीन जो है बैक्स, हाँ बैक्स BCL2 का कॉम्प्लेक्स बनता है ना। अच्छा, तो अगर BCL2 ज्यादा, क्लेवेटा 1, और ये अभी पढ़ा हमने कि सेरेंद्रियन काइनेज कहाँ पे काम करता है, TGF बीटा वाले में। प्लांट में भी देखो सेम ही है, हाँ प्लांट में भी सेम है, सेरेंद्रियन काइनेज। 2 रिसेप्टर होते हैं प्लांट का, एक तो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज और LRR ल्यूसीन डिस्ट्रीब्यूट, ये इंपॉर्टेंट है।
क्लेफ्टा-1 की बात कल करेंगे, एरोडोसिस के फ्लोरल मेरिस्टेम के डेवलपमेंट में। ढेर सारा भार देना दिमाग में ना ठीक नहीं होता है। एक मैंने बड़ा अच्छा नोट बनाया है, दैट इज समरी नोट, कि कितने तरह के ग्रोथ फैक्टर हैं एंड देन व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल हार्मोन, वो थोड़ा सा लिखा है, एंड हाउ द वाइब्रियो कार्बरा इज गोइंग टू एक्ट, CFTR मैकेनिज्म। और एक नोट्स मैंने इधर बनाया पूरा वर्ड में, आई विल अपलोड इट, अभी थोड़ा सा फाइनल कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे व्हाट इज द डिसेंसिटाइजेशन, है ना, डिसेंसिटाइजेशन किसको बोलते हैं। इसमें वो चीज़ें मिलेगी जो आपको हमने यहाँ पे नहीं दे पाए किसी वजह से। डायग्राम थोड़ा मिसिंग है, तो डायग्राम सोच रहा हूँ थोड़ा ऐड कर दूँ, फिर वो इजी हो जाएगा। आज इसी सीक्वेंस से पढ़ाया भी है, NOC मैकेनिज्म, न्यूरोट्रांसमीटर, फिर पेप्टाइड हार्मोन ग्रोथ फैक्टर्स, है ना, ये सारा इसी सीक्वेंस में बात करी है हमने, काफ़ी कवर कर दिया। इकोस्नाइड, लिकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। अब कल करते हैं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. हेलो।